young girl, Judge Sahiba, I'll say. So it is really a matter of honor for us that you had been able to spare time. We understand really because you have always time pressures into such type of assignments. And I really thank you at the outset. Thank you so much for having me, sir. You are older to me, sir. You don't have to thank me. No, it is, and it is really nice of you to think that way. I'm not taking much of the time. I would really leave the floor for you because you are our part, I believe. And the students are. लेकिन बस इतना जरूर कहूंगा कि your success is amazing. Your efforts, your mindset, your abilities. I mean, it is something जिससे मुझे लगता है कि हर आदमी सीख सकता है। सर आने के बाद एक भी बच्चा एक भी कोई अपनी ड्रीम पूरी कर लेता है, I am more than happy. My work here is done. That's very true. That's very true. आप सब इतना वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एक नहीं सबके सब अपने ड्रीम्स फुलफिल करेंगे, सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स बनने वाले हैं। इंशाल्लाह, I am confident of that. Yes sir. बच्चे हमारे अब काफी मेहनत कर रहे हैं. I must confess this. They are working very hard, and especially in this adverse situation, pandemic situation, absolutely. Maintaining the mindset. मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल फल मिलेगा. कभी मेहनत का बिना कभी फल के बिना मेहनत देर नहीं होती है. That's very true. मैं बिलीव करती हूँ हार्ड वर्क कर रहे हैं. Now the floor is open for you. Okay, so but before Anushka starts, let me just introduce her to the students because they are waiting. They have been waiting since long. So let me introduce her. That's Anushka Jain. She is civil judge, junior division, Dhanbad, and she has studied from Amity School Law School. The outstanding part is that, okay, we can see Gaurav also. He is also joined. Gaurav, you're not audible. You're not audible, Gaurav. You're mute. Go ahead. Mute कर लीजिए. Okay, okay. So, Anushka, the best part of Anushka to be with us is here that she'll be sharing her wisdom. She stood first rank. She secured first rank in the Jharkhand Judicial Services Examination 2019, and the best part is in the very first attempt. So that is something which we have to learn from you, Anushka, my student. Please share your wisdom and your experiences so that they at least get an exposure that how should they be preparing themselves for the judiciary exam so that they can, improve their ranks and achieve. So, welcome, Anushka. So, the floor is open for you. Thank you so much, man. Please bear with me. The phone is not, like my laptop is not working. I think जो भी अगर issue बीच में आता है तो we will all just bear accordingly. No issues. But let us start now. Yes, so let's start. First of all, I am really elated to be here and honored to be here. Thank you so much. Residential Coaching Academy, AMU, for inviting me. Professor Imran Salim Sahab, Director of RCA, AMU. Professor Asiya Chaudhary ma'am, Deputy Director, Residential Coaching Academy, AMU. And Mr. Gaurav sir, as I like to call him, Coordinator for Judicial Service and Students. और अब मैं इनएविटेबल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो ऑनलाइन क्लासेस का है. आई एम ऑडिबल कंप्लीटली? आई एम विजिबल, राइट? यस, एब्सोल्युटली मैम. यस मैम. गौरव सर, डू वी हैव यू? Yeah, beta, I'm sure I'm available now. I can see you. Great. I welcome you, Anushka, from the core of my heart. And please, sir. One more thing I want to tell all of you. First of all, my regards to Professor Imran Salim Sahab, our director. My regards to Professor Asiya ma'am, our deputy director. All my students, I tell you, Anushka is one of you. And she was not such a brilliant student, I must say, but she was a very good student. Sir, she has a very good grasping powers. And now over to you, Anushka. You speak a bit now.
सर का क्या है, सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर आईपीसी पढ़ा चुके हैं कॉलेज में, और ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स, मेंटोर्स यू कैन गेट। बहुत आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल। मुझे लाइफ में हमेशा ही बेस्ट टीचर्स मिले हैं। और आप सबको बताना चाहती हूँ, अपने टीचर्स का, अपने गुरुओं का, अपने माँ बाप का हमेशा रिगार्ड करके चलिए, उनका सम्मान करके चलिए। क्योंकि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज से ही कुछ भी पाना चाहते हैं, अगर आप बड़ों का आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं ले रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर ले रहे हैं तो जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप जरूर पहुंचेंगे। जैसे कहते भी हैं, गोरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो टीचर्स का, अपने माँ बाप का हमेशा सत्कार कीजिए। एंड जो मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ एक जुडिशियल ऑफिसर की कैपेसिटी में आपसे बात नहीं करूंगी। आई विल ट्राई टू टॉक टू यू एज अ स्टूडेंट हु वाज अंडर प्रिपरेशन, हु वाज एन एस्पिरेंट, जिससे यू फील लाइक देयर इज सम रिलेटेबिलिटी, वननेस बिटवीन अस एंड देयर इज नो ऑकवर्डनेस। मैंने सर को बताया कि प्रिपरेशन वगैरह तो अभी हम काम भी करते हैं, इतना मुझसे नहीं हो पाया आज के लिए, बट आई वांट टू कीप इट इंटरैक्टिव। जो भी किसी को पूछना हो, जो भी कुछ है, प्लीज फील फ्री। आई एम अगेन सेइंग, यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, जजमेंट सिर्फ कोर्ट में, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम सब मिलकर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, वही हम सबका यहाँ उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहले से ही स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक हमारे सेशन का है हाउ टू इम्प्रूव योर रैंक। हम अपनी रैंक कैसे इम्प्रूव करिए। और रैंक इम्प्रूव करने से पहले, रैंक लाने के लिए आपको सिलेक्शन की जरूरत है। सिलेक्शन होगा तो तभी हमारी रैंक आएगी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू माई एग्जाम्पल। यहाँ पे इस एग्जाम में 107 सीट्स थी। तो जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सब हमें सोचते हैं कि प्लीज गॉड, आई विल जस्ट गेट 107th रैंक, मैं तभी खुश हूँ, बस मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 107 सीट मिल जाए, कुछ नहीं होता। तो आप विश तो कुछ भी करते हैं, लेकिन आपकी प्रेपरेशन 107 सीट के लिए नहीं होगी। आपकी प्रेपरेशन हमेशा रैंक 1 की तरह ही होगी। ठीक है, चाहे आप कुछ भी पाना चाहे, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन योर प्रेपरेशन। ठीक है, आपको पूरा पूरा जितना आपके अंदर दम है, आपने अपना ड्रीम बनाया है। इफ यू वांट टू डू इट, देन डू इट। कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं है। आप जब भी आप कोई सोचना चाहते हैं, ठीक है मैंने डिसाइड किया कि मैं जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो फर्स्ट बिफोर एवरीथिंग यू हैव टू एग्जामिन व्हाई यू वांट इट। आप क्यों बनना चाहते हैं जुडिशियल ऑफिसर। ये देखिए, एक प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है आपने आज पढ़ाई कर ली, पीटी क्लियर कर दिया, मेंस कर लिया, इंटरव्यू में बैठ गए, एक दिन की प्रेपरेशन हमने वहां पे फेस कर लिया, अपना पर्सनालिटी हम बन गए, ऐसा नहीं होता है। आपको, इफ यू वांट टू बी समवन, फर्स्ट एनालाइज व्हाई यू वांट इट। एंड जो भी जुडिशियल ऑफिसर की क्वालिटीज होती हैं, पहली बात तो आपके अंदर होंगी पहले से, तभी आप बनना चाहते हैं। नहीं भी है तो ट्राई टू इम्बाइब देम। आप वैसे बनने चाहिए। जैसे अ जुडिशियल ऑफिसर हैज टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रेविटी, अ लॉट ऑफ पेशेंस, और बहुत सारा हार्ड वर्क करने का क्षमता और इच्छा। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा हर जगह। ठीक है, तो पहले आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, ये मेरे रीजंस हैं। नाउ इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई बहुत बैकग्राउंड है, अफ्लुएंट बैकग्राउंड है तो बन ही जाएंगे, या बहुत हम्बल बैकग्राउंड है तो नहीं बन पाएंगे। बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। बहुत आप लोग देखेंगे कि हम्बल बैकग्राउंड के लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी उनकी रैंक्स है, इतना अच्छा आगे जाके भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। और जो रिच बैकग्राउंड के भी हैं वो भी कर रहे हैं, बिकॉज हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं किसी की स्ट्रगल नहीं, आपकी स्ट्रगल अपनी है, तो आपकी सक्सेस भी अपनी होगी। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे हमारा प्लान है कि हमें जुडिशियल ऑफिसर बनना है, अब इसका क्या हो सकता है। मेरे केस में जैसे मुझे यही बनना था, मेरा बचपन से सपना यही था 7th स्टैंडर्ड से, कि मुझे तो यही बनना है। तो कई लोग आपको कहेंगे प्लान ए प्लान बी होना चाहिए। देखिए, ये होना चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच, कि भाई मैं कितने साल इसको देना चाहता हूँ, तो यू हैव टू हैव अ प्लान अकॉर्डिंगली। बट मुझे लगता है जैसे मेरा प्लान यही था कि मुझे यही बनना है, तो मेरे तरीके कैसे हो सकते हैं वो डिफरेंट है। या तो मैंने सोचा था मैं फर्स्ट मतलब 4 साल दूंगी और जेएमएफसी का क्लियर करूंगी, ऐसे बनूंगी, और बाई चांस 4 इयर्स मेरी कैपेसिटी है कि मैं 4 साल इसको डेडिकेट करना चाहती हूँ। उसके बाद अगर नहीं हो पाता, देन आई विल गो फॉर लिटिगेशन, और फिर हायर के लिए आई विल सिट कि मैं हायर जुडिशरी के लिए करूँ। तो बनना तो मुझे जज ही है। तो आप देख लीजिए आपको कैसे कैसे रखना है। अब
जो प्रोसेस है देखिए बहुत लेंदी होने वाला है, इट विल बी वन डे एट अ टाइम, ऐसा नहीं है आज बैठे हो जाएगा। कई लोगों के लिए 6 महीने हो सकता है, कई लोगों के लिए साल हो सकता है, कई लोगों के लिए सालों हो सकता है। तो उससे डरिए मत, क्योंकि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। तो ये तो होने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है भी वही कोई नहीं कर सकता। मैं आप मेरे बातचीत करने से पता लगा सकते होंगे, आई एम वन ऑफ यू। सर तो उसके पूरे मतलब फिटनेस है कि मैं हर चीज, मैंने कॉलेज में हर चीज करी है, मैंने मूड किया है, डांस किया है, थिएटर किया है, सिंगिंग, हर चीज, पढ़ाई भी करी है। तो डरिए मत कि आपसे नहीं होगा, आपसे जरूर होगा। तो पहले हमने आज अपना डिटर्मिनेशन कर लिया, अब मुझे बनना है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप थोड़ा स्टेट भी देखिए कि किस स्टेट के लिए आपकी इंक्लिनेशन है। वैसे मेनली जो सब्जेक्ट्स होते हैं सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, ये मेनली सब में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब मतलब मेनली इट इज द सेम, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो आपको एज मिलेगा। जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ही जा सकती थी, बिकॉज जैसे पंजाब है, आपको उसमें पंजाबी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी चाहिए, गोवा में आपका कोंकणी चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके हर किसी का लैंग्वेज पेपर भी होता है। तो आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ कंफर्टेबल हैं। अगर आपको आती है पंजाबी, इन माई केस मुझे मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है, तो मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए बैठ सकती थी। अब जैसा स्टेट होगा उसकी अप्रोच में थोड़ा डिफरेंस आएगा। जैसे एमपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे मेनली थ्योरेटिकल आते हैं। झारखंड भी मेनली थ्योरेटिकल ही आता था, बस इस बार उन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया था और प्रैक्टिकल भी दिया था प्रोसीजर रूप में। और वरना दिल्ली, हरियाणा, दे आर एप्लीकेशन बेस्ड, दे आर बहुत ज्यादा मतलब वो पूरा एनालिसिस वाला आता है। और यूपी में भी इट्स अ बैलेंस, यूपी में मोस्टली थ्योरेटिकल होगी, बट उसमें क्योंकि जीएस के बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। फिर आपने स्टेट डिसाइड कर लिया, अब आप देखिए कि सोर्सेज क्या है। अब जैसे आपके यहाँ कोचिंग हो रही है, तो आई एम श्योर दे विल बी डूइंग देयर बेस्ट, आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें बताएंगे, सजेशन देंगे, बुक आपको बताएंगे। एंड ट्राई टू स्टिक टू सिंगुलर सोर्सेज। ऐसा मत करिए कॉन्ट्रैक्ट आप हर जगह से पढ़ रहे हैं, स्टिक टू वन बुक, एक ही बुक से पढ़िए, नोट्स हैं जो भी है आप एक एक सोर्स लेके चलिए, ज्यादा इतना गोल मत करिए, ठीक है। उसके बाद अब जैसे एग्जाम हमको उसका पैटर्न पता है कि पीटी आता है, मेंस आता है, देन देयर इज इंटरव्यू। एज आई सेड इट इज, yes, can I continue? Yeah, sure, go ahead. Yes, ma'am. So as I said, it is a process, right? So it will go on, आपका पूरा ड्यूरेशन लेगा, तो कोई हड़बड़ी मत करिए, पेशेंस रखिए। अब जैसे आप ये नहीं कर सकते दैट विल प्रिपेयर फॉर पीटी फर्स्ट, आपने पीटी क्लियर किया फिर जाके आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर जाके इंटरव्यू। दिस इज नॉट एन अप्रोच, इससे नहीं होगा। सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द पर्सपेक्ट ऑफ मेंस ओनली। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, तो ये कॉन्सेप्ट समझेंगे आप, तभी आप क्लैरिटी आएगी, तभी आप ऑन द पॉइंट बुल्स आए आप हिट कर पाएंगे। क्योंकि पीटी में आपको पता है एमसीक्यूज हैं, आप सोच रहे हैं हम रट लें, ऐसे करके क्रैम करके हम दे आए, पीटी शायद निकल जाए, बट मेंस नहीं निकल पाएगा ऐसे। सो स्टार्ट फ्रॉम द मेंस प्रिपरेशन ओनली। सबसे पहले बेयर एक्ट्स हैव टू बी योर बाइबल, उसको बाइबल मान के चलिए। बेयर एक्ट्स पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए कमेंट्रीज है, सब कुछ है, दे आर वेरी गुड, बट बेयर एक्ट्स ही आपका यही आपके गाइडिंग सोर्सेज हैं, यही आपको चला सकते हैं, यही यूज करना है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है। तो आप बेयर एक्ट पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, इसका कोई एंड नहीं है और इसमें कुछ घबराने की बात भी नहीं है। ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है, सबकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है, सबका कितना डिटर्मिनेशन और कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। तो पहले आप बेयर एक्ट पे कमांड करिए। उसके साथ साथ जो भी आप कमेंट्री पढ़ रहे हैं, हर दिन आप बांट लीजिए कि आज मैं ये वाले इतना सेक्शंस करूंगी या करूंगा, इतना मैं सब्जेक्ट, आज ये छोटा सब्जेक्ट ले लिया। यू कैन आप कंबाइन कर सकते हैं, अपना खुद का स्टडी टाइम टेबल बना सकते हैं कि आज मैंने जो मेजर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल सीआरपीसी, इसका मैं सारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पढ़ लूंगी और एक छोटा एक्ट ले लिया, एविडेंस के मैंने 10 सेक्शन करूंगी आज। ऐसे कर करके अपना टाइम टेबल बनाइए, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, दोनों टर्म्स होने चाहिए। जैसे 6 महीने में मुझे अपने 3 बिग सब्जेक्ट्स खत्म करने, अपने अकॉर्डिंगली, ये तो क्या मैं लॉन्ग टर्म कि मुझे इतने करने हैं सब्जेक्ट्स। शॉर्ट टर्म क्या है, आज मैं इतना पोर्शन करने वाली हूँ, इस हफ्ते तक मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग गोल्स।
इससे क्या होता है, जैसे जैसे आप शॉर्ट गोल्स अपने अचीव करते रहेंगे, आपको एकदम मोटिवेशन मिलेगी, यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। इट्स ऑल लाइक इट्स अ गेम, यू हैव टू प्ले विद योर माइंड कि कैसे कैसे हम इसमें एंगेज रहे हैं, यू हैव टू एंजॉय इट, इससे बोर नहीं होना है। मैं बता रही हूँ तब लगेगा आपको अरे यार हम क्या करने बैठे हैं, उसका तो हो गया, हमारा तो हो ही नहीं रहा, हम तो कितना पढ़ रहे हैं भाई, हो ही नहीं रहा। अभी लग रहा है, अब जाके व्हेन आई एम एक्चुअली गोइंग टू द पोर्ट, हम याद करते हैं हम कितना ज्यादा मजे करते थे भाई, इट वाज फन, यू डोंट रियलाइज अंटिल इट्स गॉन, इट इज रियली फन। आप इस प्रोसेस को प्यार करिए इससे, ठीक है। तो शॉर्ट गोल्स हो गए आपके, लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। उसके बाद और हम इस कॉन्सेप्ट पे कैसे ग्रिप करें, उसके लिए यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ केस लॉज। केस लॉज से क्या होता है, एक तो देयर इज अ स्टोरी सो इट गेट्स रजिस्टर्ड इन योर माइंड, ठीक है। सेकेंडली केस लॉ से यू नो हाउ द जज इज थिंकिंग, हाउ इट इज अप्लाइड, कि कैसे एप्लीकेशन है इसका। समटाइम्स बेयर एक्ट में 4 लाइन लिखी है, आपको नहीं समझ आएगा, बट केस लॉ से इसकी एप्लीकेशन पता लगती है, किस केसेस में लगता है, तो इट विल ओपन योर माइंड। एंड व्हेन यू थिंक लाइक अ जज, देन यू विल गेट टू नो हाउ आई हैव टू थिंक, मैं किस तरीके से सोचना है, वो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। जजमेंट राइटिंग से आपको समझ आएगा आंसर राइटिंग कैसे करना है, मैं आंसर राइटिंग अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो केस लॉज हमारे हो गए, हमारा बेयर एक्ट हो गया, नोट्स जो भी आप बना रहे हैं, जो भी अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं क्लासेस जैसे भी होता होगा, यहाँ पे क्या शेड्यूल है, तो उसका जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिविजन करिए। एंड रिविजन सिर्फ सिर्फ एक किताब लेकर ऐसे नहीं होती, ट्राई टू टॉक, ट्राई टू हैव डिस्कशंस ऑन इट, राइट। एंड मेमोरी गेम करिए, जैसे आज मैंने ये पढ़ लिया तो मैं बैठती हूँ, ठीक है, मैं फ्री हो गई, आई एम ईटिंग, तो फिर कुछ भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं ऐसे, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो अगर आप माइंड से रिविजन करेंगे तो उससे आपका और स्ट्रॉन्ग रहेगी ग्रिप। सो यू हैव टू रिवाइज हियर एंड देन यू कैन ऑब्वियसली रीड एंड रीरीड। अब जैसे ये मेंस की प्रिपरेशन तो चलती रहेगी, इट विल कीप ऑन गोइंग। साथ साथ जब आपको लगे आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है मेरा सिलेबस हो रहा है थोड़ा बहुत, मैं आई एम रीचिंग देयर, एक बार मैंने कर लिया है या फिर मैंने मेजर पार्ट्स कर लिए हैं, और या फिर आप बहुत बोर हो गए बीच में, या थोड़ा सैचुरेशन लेवल आ गया कि मैं तो थक गई हूँ, मेरे को ये नहीं करना है, देन यू स्टार्ट पिकिंग अप योर एमसीक्यूज। पीटी की प्रिपरेशन साथ साथ आप एमसीक्यूज करेंगे तो इट इज फन, आई बिलीव दिस इज 4 ऑप्शंस है, इट इज फन, आई लाइक इट। तो फिर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा आपको मोनोटोनी से थोड़ा ब्रेक मिलेगा। तो एमसीक्यूज करेंगे, बैरैक पढ़िए, ऐसे कर करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। एंड जब आपको लग रहा है कि मेरी मेंस की प्रिपरेशन ठीक चल रही है, मैं एक बार सारा कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तब तो आपको एमसीक्यूज उठाने ही चाहिए, ये ही पीटी का है। आप कितनी बैरैक्स पढ़ते रहिए, इंडेक्स आप रट लीजिए कितना भी, वहां जाके जब आप एमसीक्यू करने बैठेंगे आपका दिमाग वगैरह ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वहां टाइम वेस्ट होगा। सो इट्स गुड दैट यू स्टार्ट डूइंग योर एमसीक्यूज। एक पेपर तो रोज कर ही सकते हैं, इस एक पेपर में कुछ नहीं जाता। अब वो पेपर आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं या फिर मिक्स ले सकते हैं। एंड डोंट वेट, ये आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल टेल यू दिस हैज बीन माय मंत्रा, एंड ये मैं बचपन से करते आई हूँ, दैट्स हाउ आई फील दैट आप मतलब स्कोर कर सकते हैं। कि कभी भी क्वेश्चन पेपर से मत डरिए, क्वेश्चन पेपर से लोग डर जाते हैं, अटेम्प्ट करने से डर जाते हैं, हम क्वेश्चन पेपर तभी करेंगे जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी टेल यू, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन। आप कितना ही पढ़ लें, आपको लगेगा कि नहीं मेरी कंप्लीट नहीं है प्रिपरेशन, तो और फिर आप एग्जाम पेपर उठाते नहीं है बच्चे कि भाई हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ, फर्स्ट वील कंप्लीटेड देन वील ओपन द क्वेश्चन पेपर। डोंट डू दैट, डोंट बी स्कैर्ड, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, द fears they are just like paper tigers, they are nothing। ये आपके दिमाग में fear कुछ नहीं है, पेपर उठाइए, start doing it। मैंने नहीं पढ़ा एविडेंस, मैंने उठाया एमसीक्यू करने लग गई। देन व्हेन यू क्रॉस चेक, जब आप टैली करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लॉ तो पढ़ा ही है सबने कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप स्क्रैच से स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत तो होता ही है। लॉ इज नथिंग, लॉ इज कॉमन सेंस, कॉमन सेंस एंड गुड सेंस कि आप क्या सही होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा आंसर चेक करके, अच्छा ये है इसका आंसर, दैट्स हाउ, ये रीजनिंग है, जो भी है आपको तब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एमसीक्यू किया, मेरे दिमाग में रजिस्टर हुआ, अच्छा मैंने गलत किया था, ये है सही आंसर। देन व्हेन यू ओपन द बेयर एक्ट सम टाइम और यूर रीडिंग या कुछ केस लॉ पढ़ रहे हैं, तब आपको वो चीज याद होगी, तो कंफर्म होगी, वो सीमेंट हो चुकी है आपके दिमाग में, वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, साथ साथ प्लीज पिक अप एमसीक्यू, स्टार्ट डूइंग देम इररिस्पेक्टिव आपने वो सब्जेक्ट किया है कंप्लीट, नहीं किया है, वो करते रहिए। जैसे जैसे पीटी पास आता रहेगा, देन यू पिक अप द पास्ट ईयर पेपर्स, जितने पास्ट ईयर पेपर्स है निकालिए, उनको करते रहिए, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, एंड जरूर आपका पीटी से निकल जाएगा। कहीं कहीं स्टेट है जैसे उत्तराखंड है,
उत्तराखंड बहुत ज्यादा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सेक्शन बता दीजिए इसका, तो उस वाले स्टेट्स के हिसाब से आपको पास के पेपर्स देख के पता लगता रहेगा। तो उसमें आप इंडेक्स जरूर देखिए एक बार, इंडेक्स में क्या है, एक बार जब रिवाइज करने लास्ट के 5 दिन है, इंडेक्स देख लिए, एमसीक्यूज देख लिए, अच्छा ऐसे करके, तो वो स्टेट वाइज आप थोड़ा देखते रहिए। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एमसीक्यूज भी एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू से ही कर रहे थे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो आप वहाँ एमसीक्यू भी कर पाएंगे। अब मैं चलती हूँ स्टेज वाइज। अब आ गया मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम, अब उसको हम कैसे करें। कई स्टेट्स में प्रीलिम्स में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप लीव नहीं कर सकते, यू कांट अफोर्ड इट बिकॉज ठीक है नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप करिए, सारे क्वेश्चन करके आइएगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसका एक प्लान आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे कई लोग होते हैं वो सारा पहले वही क्वेश्चन पेपर में मार्क करते हैं एंड देन ओएमआर शीट पे करते हैं। एवरीवन इज फॉलोइंग मी, नो? आई एम स्टिल कनेक्टिंग, राइट? Very much they are following. Yes. So yes, so कई लोग क्या करते हैं, they take up the question paper, they tick the questions, tick the answers there and then साथ के साथ बाद में लास्ट में एक साथ OMR शीट भरते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट थिंग, बिकॉज देन एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे गलत मार्क हुआ फिर नीचे के सारे गलत होंगे। तो आप देख लीजिए, आई एम नो वन टू टेल यू कि आप ये वाला ही करिए, वो आप देख लीजिए। बट इफ यू डूइंग लाइक दिस कि आप एंड में जाके सारे करते हैं, तो प्लीज बी वेरी कॉशियस। आपको सारा पेपर आता भी होगा तो गलती से गलत ना हो, तो यू हैव टू बी कॉशियस। सेकेंडली, कुछ होते हैं जो एक कर करके साथ साथ करते हैं, वो भी ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप इसको 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास, मैं आई एम डेड श्योर कि यही है इसका आंसर, तो मैंने इसका आंसर बी है तो मैं बी मार्क कर लिया। फिर अगर लास्ट में करने वाला टिक कर लिया, टिक हो गया, मतलब आई एम डेड श्योर ये इसका आंसर है, मार्क कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आया, इसमें मुझे डाउट हो रहा है कि यार ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो आपको हल्का डाउट है, बट आपको 2 में ही डाउट है, तो यू आर लाइक स्टिल देयर, 80% आप देयर है, आप उसको सर्कल कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे सर्कल कर लीजिए, इसको देखते हैं अभी। बट यू हैव टू बी वेरी क्विक इन दिस, ये सब मेंटल गेम जल्दी जल्दी होना चाहिए और कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना एमसीक्यूज, तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखा, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, बिल्कुल मुझे इसका पता ही नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, कभी इसका मैंने जिक्र भी नहीं सुना, उसको क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, अब पहली रीड में आपने सारे कर लिए जो आपको रीड पूरे श्योर थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे जितने कट ऑफ आपको पता है 5-10 ऊपर नीचे होती रहती है, 5-10 में ज्यादा बोल रही हूँ, 2-5 इतना है, 3 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे होती है बस, तो आपको हल्का आइडिया है कि कट ऑफ कितनी जाती है। बिकॉज पीटी में आपको या 90% स्कोर नहीं करना है, ये कुछ आई जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, इट विल नॉट डिटरमाइन योर रैंक, इट विल नॉट डिटरमाइन एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई इट। तो अगर आपको लग रहा है मेरे सारे ही ठीक करने पे मेरा स्कोर तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो आप जो डाउटफुल वाले हैं उनको भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा कि भाई मेरा इतना भी नहीं कि मेरा गलत हो जाए, थोड़ा बहुत डाउट वाले ले सकते हैं। बट ओनली आपके जो श्योर वाले हैं बहुत ज्यादा है, जो कट ऑफ ऑलमोस्ट रीच कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा स्कोर इतना नहीं आ रहा है यार, वो आपको अंदाजा हो जाएगा, तो जो डाउट वाले हैं वो पिक करिए कि डाउट वाले अच्छा इसमें मुझे ये, तो उसमें आप करके देखिए ज्यादा हो रहा है। और क्रॉस वाले में फिर आप देख, अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो आई विल सजेस्ट ना ही करिए उनको, तुक्की मारने की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन अफोर्ड तो आप थोड़ा सा वहाँ पे प्ले कर सकते हैं। सो इट विल कम विद प्रैक्टिस एमसीक्यूज के, कि मुझे कैसा अप्रोच रखना है, बट दिस विल द बेस्ट। जो मुझे परफेक्टली आता है उसको टिक करिए, अगर वैसे साथ के साथ करना है वही मार्क करिए, डाउटफुल वाले देखिए 2 में डाउट है, उसके बाद थर्ड पाई कि बिल्कुल नहीं आता, तो इस स्टेज में आप अपने प्रीलिम्स पीटी का पेपर ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पीटी अब आपका क्लियर हो गया है, वेरी गुड। अब जैसे जिन लोगों ने मेंस की कर रखी है तो उनके लिए एक रिविजन का टाइम है, बट जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया हुआ तो उनको सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। सो देयर इट हेल्प्स अगर आपकी पहले से की प्रिपरेशन हो रखी है थोड़ी बहुत। तो अब जब मेरा मेंस है तो आपने पहले से ही अगर प्रिपरेशन करें तो उसमें स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बना लीजिए कि बिल्कुल ही आपके बुलेट पॉइंट्स, ये कहता है। सो आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन, वेट, We are recording the entire conversation. Don't worry with regard to that. We will be uploading it on the website. Anushka, you can carry on. Then later on, we will take the questions once you finish up with that. ओके। तो इन मेंस देन हाँ, तो आप जब मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो बुलेट पॉइंट्स आपने लिखे होंगे या नहीं है, तो ट्राई टू मेक इट वेरी शॉर्ट कि अच्छा ये टॉपिक है, इसका ये पॉइंट है, ये टॉपिक है, इसका ये पॉइंट है। रिवाइज करते रहे। पास के पेपर्स वो आपको देखने ही है, उनको लिख कर देखिए और उसमें केस लॉ देखिए कि क्या
अब मैं राइटिंग का भी आपको बताऊंगी, मेंस राइटिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी प्रिपरेशन हैज टू बी अगेन एंड अगेन रिविजन, कि आपको रिवाइज करते रहना, वही आपका है। इट्स नॉट लाइक सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज से थोड़ा कम ही है यहाँ पे सिलेबस, तो इट्स इजियर, यू हैव टू जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन। और ब्रेक लीजिए प्लीज ब्रेक लीजिए प्लीज, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी मैं थोड़ा बताऊंगी आपको, ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए। बट ये तो इट इज एज important as your preparation. If you're flustered, if you're very getting anxious, या फिर आप बहुत डाउट में है, तो आपका मेंस में वहां पे, क्योंकि when at home आपको थोड़ा बहुत हो रहा है, वहां का थोड़ा सा तो एटमोस्फेयर होता है स्कैरी। इट इज नॉट वेरी स्कैरी, बट इफ यूर हैंडलिंग योर मेंटल हेल्थ शुरू से ही, देन इट्स नॉट वेरी स्कैरी। क्योंकि यही है, क्योंकि बच्चों में हुआ होता है कि भाई क्वेश्चन पेपर का, तो क्वेश्चन पेपर आप पहले से ही कर रहे हैं, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन करिए। अब लैंग्वेज पेपर, आप ये नहीं सिर्फ लॉ करे जा रहे हैं, लैंग्वेज भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी इंग्लिश जो भी है, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज कीजिए। आजकल गूगल पे, इंटरनेट पे इतनी आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी कि आप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने अगर लॉ सब्जेक्ट्स को दिन में 3 घंटे दे रहे हैं, अब ये मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मेंस आ रहे हैं तब तो आप पूरा टाइम अपना इसी में दीजिए प्रेपरेशन में। बट अगर शुरू से चल रहे हैं, तो अगर 3 घंटे आप अपना लॉ को दे रहे हैं, तो 2 घंटे आप जरूर अपने जीके जीएस को दीजिए, 1 घंटा अपना लैंग्वेज को जरूर दीजिए। बिकॉज लैंग्वेज की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस राइटिंग में, ठीक है। तो लैंग्वेज आप अपना ट्रांसलेशन कीजिए, प्रेसी आता है, पैराग्राफ आता है, एस्से आता है, ये सब करिए। उसके बाद आप जीके जीएस कैसे करें, न्यूज़पेपर आपको रोज पढ़ना है। न्यूज़पेपर में भी ये नहीं आप 2-3 घंटे लगा रहे हैं, ऐसे मत करिएगा, थोड़ा सा देखिए, क्या वो आपको पता लगता रहेगा कि आपको खुद पता है कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऊपर की हेडिंग अंदर का पता होना चाहिए कि क्या, लाइक व्हाट इज द इशू, क्या मैटर पे बात हो रही है। ये आप पूरा पूरा दिन अपना न्यूज़पेपर लगा रहे हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर्स कैन बी वेरी कंज्यूमिंग। आप एक बार न्यूज़पेपर बिल्कुल शिद्दत से पढ़ेंगे ना, तो पूरा टाइम ले जाएगा वो। तो थोड़ा स्मार्टली न्यूज़पेपर पढ़िए, या कोई मैगजीन है, बहुत सारी मैगजीन्स है, ल्यूसेंट है, प्रतियोगिता दर्पण है, काफी मैगजीन्स है। ल्यूसेंट इज अ वेरी गुड बुक फॉर जीएस एंड जीके। और बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी जीके जीएस की वीडियोस आती हैं। मैंने यूट्यूब से काफी पढ़ाई करी है जीके जीएस के लिए। हर दिन आपको क्वेश्चन आएंगे, हर दिन आपके पास, मतलब डे टू डे बेसिस पे भी आपके पास जीके जीएस की वहाँ होती है। बाकी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको जो भी है, जो भी मटेरियल होता है, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और जीके हो गया, जीएस हो गया। हाँ, तो अब जब न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल जरूर पढ़िएगा। editorials are very good, they help you to form to help you with your opinions। ये नहीं कहूंगी कि अपने ओपिनियन चेंज कर दीजिए, लेकिन वो आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, कैसे दिखाना है उसको, और उसमें आपके पास इतना ज्यादा रेफरेंसेस होंगे डे टू डे लाइफ में। तो एडिटोरियल जरूर पढ़िए आप वहाँ पर। और न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, इसमें कोई रूल नहीं है कि भाई हिंदू ही अच्छा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ही अच्छा है, सारे न्यूज़पेपर्स ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू का बस एडिटोरियल इज वेरी गुड, और वो आप, और मतलब आप अपने हिसाब से न्यूज़पेपर चूज करिए, एडिटोरियल पढ़ेंगे, इट विल बी नाइस। और अगर किसी ने एक न्यूज़पेपर लगा रखा है, दूसरे ने कोई न्यूज़पेपर, यू कैन डिस्कस अमंग योरसेल्फ। तो ऐसे करके आप अपना जीके जीएस का क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मेंस का राइटिंग। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिलेक्शन में और रैंक में, क्योंकि राइटिंग में लोगों का ही आपका या तो बन सकता है सिलेक्शन, या नहीं बन सकता। आपके कई बार ऐसा होता है कि द मेल स्कोर इज टू गुड, कि आपका इंटरव्यू में भी थोड़ा थोड़ा कम रह जाए ना, तो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि मेल्स इज रियली गुड। और मेल्स की राइटिंग के लिए आप, एक सबसे बड़ा मंत्र है कि आप लिखते रहिए पेपर अगेन लाइक ईटी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना लिखेंगे मीन्स उतना ही आप उस पे आपको ग्रिप होती रहेगी। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, इतना पढ़ते हैं, टू सी इवन माय फ्रेंड्स में, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते थे लिखने की, वो बस पढ़े जा रहे हैं, दे आर टू गुड। ऐसा होता है कभी कभी, आई सिक्योर्ड रैंक 1 विद गॉड ग्रेस, बट आई कैन नॉट रिफ्यूट दिस फैक्ट कि मुझे सबसे ज्यादा लॉ आता है। मुझे पक्का पता है लोग इतनी साल मेहनत करते हैं, 5-5 6-6 7-7 साल मेहनत करते हैं, उनको मुझसे आता होगा बेटर लॉ। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझसे कई सारे लोगों को बेटर लॉ आता होगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट जो अच्छा लिखेगा उसी को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे भी क्योंकि आपको लिखने का तो काम है, आपको जजमेंट भी लिखनी है। अब आप लिखते रहिए 1000 पेज की जजमेंट, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अगर आप इतने चीज में अपना पॉइंट नहीं समझा सकते, तो आपको कितने ही दे दो आप उसमें भी नहीं समझा सकते हैं। तो आप मेंस की प्रैक्टिस करिए। जो मेंस, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का मेंस होता है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी पैटर्न एग्जाम।
यहाँ आपको कहानियां नहीं लिखनी है, ना ही कोई आपकी कहानियां पढ़ने में इंटरेस्टेड है और ना ही कोई पढ़ेगा। आपके आंसर्स हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट। इतना भी शॉर्ट में लिख देना कि आपने जो पूछा वही नहीं डिस्कस किया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक साइड से ये मैं तो यही फॉलो करती हूँ, और जितने मेरे लोगों से बात हुई है who have achieved good rank, उनका सबका यही पैटर्न रहा है। If there is a 5 mark का question, do not write more than one side। अब मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं, ये एक पेपर है, ये पेपर है, so this will be your one side and this will be other side, so it is one paper, so just write one side for 5 marker। If it's a 10 marker question, तो 2 sides maximum 2.5 या 3 तक अगर आपकी बहुत ही कमाल की स्पीड है तो आप 3 sides तक लेके जाइए, बट 3 से ज्यादा तो बिल्कुल मत लिखिएगा। बहुत शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने हैं। अब आंसर्स में या आपने पता लग गया कितने मुझे लिखने हैं, पहले से इसी की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन है मुझे 5 नंबर का है, नीचे लगा लीजिए ऐसे कोई मार्क, इससे ज्यादा मेरा नहीं होना चाहिए। अब लिखिए क्या उसके अंदर। अब कोई भी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है, अंदर एक हल्का सा लिखने का ढंग थोड़ा चेंज होता है। अब जैसे कोई थ्योरेटिकल पेपर है तो उसमें सबसे पहले जो भी पूछा है कि आज फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस पूछ लिया, तो आप पहले बताएंगे कि मेंटेनेंस का लीगल प्रोविजन कहाँ है। सबसे पहले बता दीजिए एग्जामिनर को कि मुझे आता है, देखिए लॉ मुझे पता है, तो अपना प्रोविजन लिखिए। अब वो प्रोविजन क्यों बनाया गया था, कुछ तो सोच के बनाया होगा। 1-2 लाइन में वो क्या अचीव करना चाहता है, उसका क्या पर्पस है, 1-2 लाइन में मैक्सिमम खत्म करिए थोड़ा बहुत कि क्या है। जैसे मेंटेनेंस है, इसका मेंटेनेंस क्यों है, सो दैट वी प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, वाइफ, पेरेंट्स फ्रॉम डेस्टिट्यूशन, पॉवर्टी, ये सब। ठीक है, ये सब आप लाइवलीहुड जो भी है इनका पर्पस लिखिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस द टॉपिक, बहुत थोड़ा सा उसके बारे में क्यों है, क्या पर्पस है, ये सब लिखा। देन कंटेंट में आइए और जो भी आपको कंटेंट उसमें लिखना है। देन इफ यू नो अ जजमेंट, मैंने जो किया था अपने पेपर में, जैसे बिकॉज आई हैव जस्ट अपीयर्ड इन वन नेम, तो उसमें मैंने हर क्वेश्चन में एक केस तो लिखा था। तो ये मत सोचिए कि मुझे एक केस में 4 केस लिखकर एक आंसर में मैं 4 केस लिखूंगी, 10 केस लिखूंगी तो ही सिलेक्शन होगा। 1 इज ऑल्सो सफिशिएंट। अगर 2 आ रहे हैं, आपको याद टाइम है तो लिखिए, बट 1 तो लिख के आइए एक आंसर में। इफ नॉट, अगर आपको नहीं है कोई केस याद, तो एग्जाम्पल लिखिए या इलस्ट्रेशन लिखिए, कुछ भी, लाइक यू हैव टू गिव देम, बिकॉज द केस इज ऑल्सो लाइक अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रोविजन। तो इसी सेंस आप एग्जाम्पल बना के लिख दीजिए, बट टू गिव समथिंग लाइक दिस। उसके बाद यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर्स। कंक्लूडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एंडेड मत रखिए, हमने बता दिया हेड इन द स्ट्रिंग खत्म आंसर, ऐसा नहीं। प्लीज कंक्लूड इट, जो भी पूछा गया था उसको 1-2 लाइन में कंक्लूड करिए। ये आपका हो गया थ्योरेटिकल। ऐसे 10 मार्कर है, उसमें और लंबा कर दीजिए थोड़ा सा, और क्या मतलब जो भी उसके अंदर आपको अच्छे से पॉइंट याद आ रहे हैं वो सब लिखिए। अब जैसे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, केस लॉ, कोई केस स्टडी आ गई आपके पास, ये ऐसे फैक्ट्स है, अब आप इसको करिए। अगेन सबसे पहले प्रोविजन लिखिए, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ये रिलेट करता है इस प्रोविजन से व्हिच इज गिवन अंडर सो एंड सो सेक्शन ऑफ सीपीसी प्लीज राइट। वो आपको खैर उसकी तो आंसर राइटिंग की पूरी लंबी क्लास हो सकती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ब्रैकेट में हियर इन आफ्टर कॉल्ड सीपीसी या फिर रेफर टू सीपीसी, वो ऐसे करके फिर आपको बता देंगे आपके अकेडमी में, और वापस दोबारा भी मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ इंट्रोडक्शन हो गया। देन यू हैव टू गिव द इशू, यू हैव टू फ्रेम एन इशू। कोई केस आपको दिया है, कोई फैक्ट दिए हैं, तो कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो यू हैव टू बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इन व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क यू। तो फ्रेम एन इशू, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, बस इतना लंबा आएगा नहीं, वरना 1-2 इश्यूज में आपका खत्म हो जाना चाहिए। अब इशू कैसे फ्रेम करें, फॉर एग्जाम्पल पीपीटी का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसमें सेकेंड अपील, जैसे मुझे अभी इतना एकदम से जो मुझे एग्जांपल आ रहा है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल वेदर सेकेंड अपील शुड बी अलाउड इन दिस केस, ऐसे फॉर एग्जांपल। तो अब आप इशू में ये नहीं लिखेंगे वेदर सेकेंड अपील शुड बी अलाउड, ये तो पता ही, तो पूछा ही सबने, तो अब वो अगेन करके क्या करें, हाउ आर यू स्टैंडिंग आउट। यू हैव टू राइट वेदर देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड, कि क्या मैं ऐसा, इट्स लाइक इट्स वेरी, और मैं बोलने में शायद लग रहा हुआ इतना कॉम्प्लेक्स, बट इट इज वेरी सिंपल। यू नो द लॉ, यू हैव रेड इट, तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मेरा प्रूव हो जाता है तो सेकंड अपील अप्लाई मतलब अलाउ हो जाएगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, व्हेन आई which is that issue which I will identify and prove, which will give me the decision, right? So identify the issue, write it like that. Please don't write generic issues, सेकंड अपील होगी नहीं होगी, ट्रांसफर होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं है। वेदर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इफ जस्टिस विल बी हैम्पर्ड, ऐसे कुछ भी करके यू टू पिक कि कौन सा इंग्रेडिएंट मांग रहे हैं, कौन सी चीज नहीं है।
हेलो, फॉर एग्जाम्पल अब आपका 379 का आता है, चोरी हुई कि नहीं हुई है, whether theft was committed or not. So you will not write whether theft was committed. You will write whether there was a movable property, whether it was moved. जो आप experience में है, आपका access is, there is some disturbance. Yes, now it's clear. So you have to identify that कि अगर जैसे 379 में actus reus क्या है, mens rea क्या है, dishonest intention. Actus reus क्या है कि वो उसकी पोजीशन से मूव हुआ है, तो आपको ये लिखना है कि whether this property was moved, whether there was a movable property, whether there was a dishonest intention, जो भी है. तो I think I have clear हो गया है कि मैं कैसे बताना चाह रही हूँ. Please do not make generic issues. आप उस पॉइंट पे बनाइएगा. आप केस लॉस हो गया, बुलेट पॉइंट्स में कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि बुलेट पॉइंट्स में बना सकते हैं, यू कैन वेरी वेल बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं. आप चाहे तो ऐसे पाई सब फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं. मैं तो बहुत बनाती हूँ. आई लाइक टू गिव फ्लो चार्ट एंड एवरीथिंग. बहुत सारा नहीं कि पूरा पेज आपने कर लिया है, बट जहाँ आपको पता लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं तो आप वहीं पे पॉइंट्स में इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं, उसके आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. एंड the paper has to be aesthetically impressive. थोड़ा सा ये है. अब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल आप परफेक्ट कैलीग्राफी करके आ जाइए वहाँ पे, बट योर इट शुड बी नीट, लाइक द पेपर शुड बी नीट एंड द हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल. कि एग्जामिनर का मूड ना खराब हो जाए आपको पेपर देखते ही, मैं क्या दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें. तो इतना हो कि लेजिबल तो हो, कि पढ़ा जा रहा है, नीट हो. पैराग्राफ प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. कई लोगों मैं देखती थी हमारे, जब मैं प्रिपरेशन में थी, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक बस एक ही लिख दिया है, पूरा एक ऐसा. तो कैसे पढ़ेगा कोई, कैसे पॉइंट्स आपसे निकाल पाएगा. So make paragraph, introductory paragraph, my content, my judgment, my conclusion, like that. Make paragraph. ठीक है. टाइमर की जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेंस राइटिंग की, प्लीज टाइमर रखिएगा, टाइम के साथ करिएगा. और क्योंकि वहाँ पे पेपर कंप्लीट करना ही टास्क हो जाता है कभी बार, और अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी. और जब आप मेंस बैठेंगे करने के लिए, प्लीज अटेम्प्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. बिल्कुल छोड़कर मत आइएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक कम हो जाता है. तो सारे अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर वही बात है, अगर आप छोटे लिखेंगे, प्रिसाइज लिखेंगे, तो आपका टाइम बचेगा. इफ अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आप वहाँ पे लिख के आइएगा 3 पेज, 10 से ज्यादा नंबर तो नहीं मिलने वाले, 15 तो आपको मिल नहीं जाएंगे मैक्सिमम. क्या बहुत ही आउटस्टैंडिंग आंसर लिखा होगा तो आपको 8 मिल जाएंगे, बहुत आउटस्टैंडिंग कर दी, ये 8.5 मैक्सिमम, ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला. सिर्फ राइट शॉर्ट आंसर, और टाइमर के साथ साथ करिए, प्रैक्टिस ही ऐसे करिए. ठीक है. मेंस हो गया आपका. फिर आता है आपका इंटरव्यू. अब इंटरव्यू में जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि इंटरव्यू भी ऐसा नहीं है कि मेरा मेंस क्लियर हो गया, 15 दिन का टाइम मिला है, मैं 15 दिन में सडनली अपनी पर्सनैलिटी ही चेंज कर लूंगी और उनको यहाँ पे झूठ दिखा दूंगी, डिसीव कर दूंगी. अभी मान के चलिए, मान के चाहिए द फैक्ट वहाँ पे सब हाई कोर्ट जजेस बैठे हैं, इतने ज्यादा लाइक ऑनरेबल जजेस वहाँ बैठे हैं, जो उनके पास, कितने आपकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है. वहाँ वो क्रिमिनल देख के बता सकते हैं कि इसने क्या किया क्या नहीं किया. तो वहां जाके आप नहीं सोचिए कि हम वहाँ पे उनको डिसीव कर देंगे, हमको दिखा देंगे कितने अच्छे हैं हम. ऐसा कभी नहीं होगा. इन द इंटरव्यू यू आर जज फ्रॉम द पॉइंट यू एंटर इन द रूम एंड यू एग्जिट द रूम. वहां तक आप जज होते हैं, सिर्फ जो बोल रहे हैं उस पर जज नहीं होते हैं. वहां पे आपको लॉ पे आपको जज नहीं करेंगे, बिकॉज आपका जितना भी लॉ का जानकारी थी दैट हैज बीन जज वेरी वेल इन द मेन एंड यू हैव क्वालिफाइड इट. एवरीबडी हु सिटिंग फॉर द इंटरव्यू नोज लॉ. ऐसा नहीं उनको लॉ पता ही नहीं है, सो दे नो लॉ. आपकी लॉ पे इतना मतलब फोकस नहीं होगा, उनका फोकस होगा आपकी पर्सनैलिटी पे. ठीक है. तो उस पे और बहुत चीज है इंटरव्यू पे भी. इट्स लाइक अ बिग टॉपिक. एक तो थोड़ा फनी लगेगा आपको, but you have to also take into consideration how you present yourself, what you're wearing. आपके कपड़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है. जैसे मैं बता सकती हूँ, अगर किसी को मतलब नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं. आई विल गो लाइक बॉयज से और फिर गर्ल्स दोनों का मैं बता देती हूँ कि क्या आपको कपड़े पहनने चाहिए वहाँ पे. ठीक है. जैसे अब जो बॉय, बहुत फनी लगेगा आई नो, जब मैंने भी समझा था, सुना था, मुझे लगा था क्या है ये, तो हमें तो अपनी पर्सनैलिटी पे जज होना चाहिए, हमारी लुक्स पे थोड़ा होना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज जुडिशियल ऑफिसर जब जज बनते हैं, आप सिर्फ कोई जॉब नहीं है कि जस्ट अ जॉब, आई गो 9 to 5 जॉब है मेरी. इट इज अ सर्विस. पीपल लुक अप टू यू. आपको मतलब भगवान की तरह देखते हैं. जब मैं तो कोर्ट जाती हूँ, लाइक पहले मैं स्टूडेंट थी, बट नाउ आई गो टू द कोर्ट. I see how they look up to you. They want to worship you.
तो आपको अगर दिखेंगे किसी तरीके से, आप बहुत केयरलेस दिखेंगे, बहुत ही केयरलेस लगेंगे, तो लोग आपको फिर कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली, एंड आपका काम पे भी बहुत उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यू हैव टू मेंटेन समथिंग, इट इज नॉट अ जॉब, इट इज अ सर्विस, यू हैव टू बी समवन जिससे यू नो यू कैन गेन कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, यू कैन अंडरस्टैंड देयर क्वेरीज। ठीक है, तो जैसे जो मेल्स हैं, आपको यू वेयर अ सूट, थ्री पीस सूट पहनिए, वेयर अ ब्लेजर पैंट्स जो भी है, नॉट नेसेसरली आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही पहनना है। अगर आप ब्लैक सूट ले रहे हैं, कैन आल्सो वेयर लाइक वेरी डार्क, यू नो वेरी डिसेंट शेड्स ऑफ ग्रे, बिल्कुल सॉलिड में, ये नहीं कोई प्रिंट बना हुआ है उस पे, लाइक वेरी डार्क, यू कैन वेयर डार्क नेवी ब्लू, और यू कैन आल्सो प्ले डार्क ग्रे, ब्लैक, ये सब आप पहन सकते हैं। कलर जो शर्ट है आपकी नीड नॉट बी वाइट, वाइट भी पहन सकते हैं, और यू कैन वेयर वेरी लाइट शेड्स ऑफ बेज, ब्लू, यू कैन वेयर इट, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही पहनना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो थोड़ा, यू कैन वेयर इट। टाई पहनिए, टाई में प्लीज कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल स्ट्रेट, यू नो लाइंस हो, जो लाइंस होती है ना ऐसे, वैसे पहन सकते हैं। डोंट वेयर सिल्क टाइज वहां पे चमकदार, वहां चमक रहे हैं आपके, सो बी डिसेंटली ड्रेस। जो शूज है, ट्राई टू वेयर लेसेस वाले शूज, जिसमें लेसेस होते हैं, कई बार होता है स्लिप इन वाले शूज होते हैं, वेलक्रो वाले होते हैं, पॉइंटेड शूज हैं, दे डोंट लुक गुड, यू नॉट गोइंग टू पार्टी। ठीक है, थोड़ा सा ब्लंट हो शूज, नाइसली पॉलिश्ड, अच्छे से आपने पहना हो जो भी है। ट्राई नॉट टू वेयर, जैसे अभी मैंने ये धागा बांध रखा है, या फिर मैंने कोई रिलीजन का यहाँ पे वो बांध रखा है, या फिर कुछ यू नो लाइक दिस, ट्राई करिए कि ना अंगूठियां पहन रखी हैं, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि एज यू नो जब आप कोर्ट में बैठेंगे, जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, इट शुड आल्सो सीम टू बी डन, है ना, दिखना भी चाहिए। तो कोई भी आपकी रिलीजियस आपकी इंक्लिनेशन है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, वो सब थोड़ा नहीं दिखना चाहिए। इवन व्हेन यू गेट योर कोर्ट रूम, डोंट हैव, ट्राई करिए कि आपके कोर्ट रूम में भी ये नहीं आपने कोई लगा रखे हैं अपने भगवान है आपके, जिसमें भी आपका फेथ है, इट्स गुड टू हैव फेथ, इवन आई एम वेरी यू नो गॉड, बहुत ही आस्तिक टाइप की लड़की हूँ मैं, बट अवॉइड कीजिए, अपने चेंबर में भी अवॉइड कीजिए, किसी को ना लगे ना कि हम भाई किसी हम बायस में कुछ कर रहे हैं। तो कोई रिंग रिंग मत पहनिए, नहीं घड़ी यू कैन ऑब्वियसली वेयर, उसमें प्लीज डिसेंट वेयर, कोई मतलब जैसे बहुत ही शाइनी शाइनी होती है, इससे प्लेन घड़ी पहनिए। एंड हेयर हैज टू बी शॉर्ट, लंबे बाल करके मत जाइएगा, वो मतलब बहुत ही शैबी हो रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, गो क्लीन शेवन, अनलेस यूर अ सिख एंड आपका रिलीजन, आपका जो कस्टम है वो आपको कहता है दाढ़ी रखने के लिए। उसके अलावा प्लीज गो क्लीन शेवन, हैव शॉर्ट हेयर, लुक स्मार्ट, आपका फेस बिल्कुल ऐसे ब्राइट होना चाहिए। अब जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के पास तो बहुत अब है, वो बिल्कुल उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो आई वुड पर्सनली, आप वैसे पैंट्स भी पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू वेयर अ साड़ी, आई वोर अ साड़ी, एंड साड़ी पहनिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो जैसे गर्ल्स का आई नो, आई एम ऑल्सो लाइक यू नो girls are always excited to wear sarees. So it's a good chance of साड़ी पहनिए, decent साड़ी, again it can be white, it can be beige, it can be very light shades of pink or blue, very light, you know, decent green also, very light, have simple border, उसपे कुछ ज्यादा फूल पत्तियां ना बनी हो, simple border की साड़ी हो आपकी, and have high neck वाले पीछे से everything, ब्लाउज ऐसे थोड़ा लंबी स्लीव्स हो थोड़ा, ठीक है, ऐसे आप पहनिए। आप, मुझे पता होगा थोड़ा, जिनको थोड़ा सा लग रहा होगा ये तो कितना कंजर्वेटिव है, प्लीज ऐसे मत सोचिए, मैं भी आपके एज की हूँ, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंजर्वेटिव की बात नहीं है। और कॉलेज में सब किया है हमने, सर को तो पता ही है, लेकिन ये आप अफसोस बढ़ चुके हैं उससे आगे, स्टूडेंट लाइफ नहीं है ये, और कोई ऐसे कोई जॉब, कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं है ये, तो याद रखिए, ये आपको भाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब ये कोई हर किसी को नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट कीजिए। अब जो बाल है लड़कियों के, डू नॉट हैव एनीथिंग रनिंग ऑन योर फेस, अच्छे से पिन करके जाइएगा पीछे, मैंने तो आई मेड अ बन बनाइए, तो बन आप छोटी भी बना सकते हैं कुछ भी, मतलब डोंट हैव एनीथिंग ऑन योर फेस, अच्छे से क्लिप करिए, इफ यू वेयरिंग अ बन पुट दैट, जो एक और उस पे आता है कवर करने के लिए, डोंट लुक शैबी, योर फेस शुड बी क्लियर, कुछ नहीं होना चाहिए, बाल आगे वागे हाँ लटे हुए कुछ, प्लीज डोंट डू इट, लुक वेरी सिंपल। एंड इफ यू आर वेयरिंग शूज, हील्स पहनने से बचिए, एक तो आप गिर सकते हैं, बिकॉज यू बी वेरी कंफर्टेबल, एज आई सेड, आप एंट्री पे ही आपको जज किया जाएगा, योर वॉक शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्टेबल, तो कट कट करने वाले जूते या सैंडल्स प्लीज मत पहनिए, इट लुक्स वेरी बैड, it leaves a very bad impression. Wear the blunt shoes, and on the day of your interview, don't wear makeup. आप बिल्कुल प्लेन जाइए, काजल लाइनर ये सब बनने के बाद भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा प्लेन रखिए अपना फेस को, डोंट पुट लाइक टू मच ऑफ काजल, लिपस्टिक एंड एवरीथिंग, गो प्लेन। तो बट फेस आपका क्लियर थोड़ा सा हो। एंड ये हमें जो हमारे जब हम हमारा प्रेपरेशन का टाइम पर जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने बताया था, तब हम बहुत हंसे थे सबके सब, बट ये सबने फॉलो किया था। आप चाहे तो फेशियल करा सकते हैं 2 दिन पहले, ठीक है। तो और सिर्फ इसलिए कि आप ब्राइट लगे, यू शुड लुक हैप्पी, ये नहीं आप बिल्कुल ही वीक लग रहे हैं, हम बहुत ही मुश्किल से सर यहाँ पहुंचे हैं इंटरव्यू में, अब बस सिलेक्ट कर दीजिए हमको। तो ऐसे तो इसलिए जस्ट लुक वेरी ब्राइट एंड कॉन्फिडेंट। अभी हो गया आपके सब उसका। सो वेन यू एंटर द इंटरव्यू रूम, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। चाहे आप, मेरा जैसे इंटरव्यू लास्ट में था, वी वर 25 स्टूडेंट्स एवरी डे, माय इंटरव्यू वाज एट 6, मतलब मैं सुबह की 9 बजे की वहां बैठी थी, साड़ी वाड़ी सब पहनकर। अब क्या कितना ही पढ़ोगे आप। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज डेड टायर्ड, आई वांटेड टू गो होम। बट अब आप, और वो भी तो बैठे हैं, बट देखो यार हम तो कुछ नहीं है। अब वो जजेस भी बैठे हैं सुबह से 9 बजे से, सेम बोर्ड, अच्छी बात है कि हमारा सबका सेम बोर्ड था। सो इवन दे वर सिटिंग, अब मैं जाके वहां ऐसे से जाऊंगी क्लाउड्स करके, तो वो कहेंगे ये भी इंटरेस्टेड नहीं है, हम भी इंटरेस्टेड नहीं है, खत्म करते हैं फॉर्मेलिटी। बट इवन इफ यू गोइंग लास्ट, आई न्यू नहीं मैं लास्ट में जा रही हूँ, so I have to look very energetic, I have to fill the room with energy, ठीक है। तो ये नहीं चिल्ला के एंटर करो, मतलब you have to fill the room, so I was very, you know, like I washed my face, I was like myself कि बिल्कुल मैं ऐसे एंटर गई हूँ, गुड इवनिंग सर ऐसे करके, ऐसे तो बी वेरी ब्राइट, वॉक कॉन्फिडेंटली, बट डोंट लुक एरोगेंट, राइट। हाँ बैठिए जो भी है, यू स्टैंड देयर, दे विल टेल यू प्लीज सिट डाउन, तो तब आप बैठ जाइए ऐसे करके। और अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, यू नो, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, जो पूछ रहे हैं वही बोलिए, अपने से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी, तो मैं एम टेलिंग यू ना, इट्स सच अ बिग टॉपिक, इंटरव्यू तो पूरी क्लास हो सकती है। तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड क्वेश्चन पूछने के वक्त यू गेट टू नो यस आई नो द आंसर, सो डोंट जंप, डोंट ओवर टॉक, यू नो, लाइक टॉक ओवर देम, डोंट कट देम इन बिटवीन, यस सर मुझे आता है, लेट, आपको आता है अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, लेट देम कंप्लीट, नेवर टॉक ओवर देम, ओके। कभी कभी क्या होता है, वो क्वेश्चन नहीं पूछते, वो बस बोलते हैं, एंड देन दे स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन देयर ओन। So let them complete, be very patient and don't look like you're faking it, be very patient। हाँ, आपको, आपके लिए इंटरव्यू आपसे ही पूछा जाएगा, तो फिर आप बैठिए, इसका क्वेश्चन खत्म हो, देन यू आंसर इट, ठीक है। आप ऐसे आंसर करिए, एंड इट इज अगेन डोंट बी स्कैर्ड विद इट फ्रॉम द जजेस, यू नो, दे, ऐसा कुछ नहीं है, भूत नहीं है कोई, ह्यूमन बीइंग भी हैं और अपना टाइम निकाल के आए हैं। एंड बहुत बड़ा, बहुत ही, मतलब यू नो, आई फील ऑन, आई वाज फीलिंग ऑनर्ड जब मैं उनके सामने बैठी थी। आपको उनके सामने बैठने का मौका मिल रहा है, उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है, यू हैव टू एंजॉय इट, इट्स लाइक, यू नो, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आपको वहां तक पहुंचने, उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, राइट। तो आप वहाँ पे दिखिए, वहाँ पे दैट, यू नो, यू आर रिस्पेक्टिंग देम एंड यू आर वेरी हैप्पी टू बी देयर। तो वहाँ पे आप उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करिए, दो क्वेश्चन खत्म हो जाए तब आंसर करिए। इफ यू डू नॉट नो द आंसर, ऐसे है कि आंसर, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गेट, यू नो, नर्वस। समटाइम्स आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है, आप पूरा श्योर नहीं होते, अगर श्योर भी नहीं है बट आप आंसर देना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है शायद मैं ठीक हूँ, तो टेक परमिशन, इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक परमिशन कि योर लॉर्डशिप या सर, अगर कमिश्नर जो भी है, यू कैन कॉल योर लॉर्डशिप सर, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, I am not very sure, or I have not revised this topic. May I attempt to answer? May I try to answer? ऐसे बहुत, you know, you ask them. वो obviously वो हाँ कहने वाले हैं, तो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं करने देंगे, तुम्हें try. So take permission, then you try. So इससे दिखता है आपकी humility दिखती है, and also that you're not sure but you're eager, you know, you're curious, but always take permission. और अगर बिल्कुल ही नहीं आता है, like you know, मुझे पता ही नहीं क्या है, very humbly say, sir, I'm so sorry, I do not know it at the present, but I will, या फिर ऐसे बोल, या फिर I'll read it as soon as I go out of this room, I'll read about it. I'm sorry, I do not know, I will research on it, ऐसे करके, don't fake it. वहां जाके आप ट्राई करेंगे ना कि हम झूठ बोलकर आ जाएंगे, शायद निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, एक तो आपकी शक्ल पढ़ लेंगे वो। दूसरा, do not open gates for them to, you know, come and grill you. आप अपने ही गेट खोलते हैं कभी कभी ग्रिल करने के लिए, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं बोल दूं नहीं आता है, मैंने हल्का सा स्टेटमेंट दिया, वो उस पर मुझे ग्रिल करते रहेंगे फिर। आई नो सो मेनी पीपल, दे वर सो गुड, बट उन्होंने हल्का सा आंसर इधर उधर दे दिया, व्हेन दे वर नॉट श्योर, वो ग्रिल करने लग जाते हैं फिर आपको। सो यू नो, सो अगर नहीं आता है, पोलाइटली से सर आई डू नॉट नो बट आई विल रीड अबाउट इट। तो ये आपको हो गया इंटरव्यू का। और अब मेरे साथ कुछ, अगर कुछ और मैं देख लेती हूँ कुछ रह रहा है तो, आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनीथिंग लेफ्ट, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं बस ये बोलना चाहूंगी, पूरे प्रोसेस में
आप मुझे पर्सनली फील होता है, मैं बिल्कुल पर्सनल होके बात कर रही हूँ। आई फील जैसे शाहरुख खान ने कहा था कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में काम करती है। तो when you see it, when you feel it, so I feel you will get it. आप अपने आप को देखते हुए हाँ मुझे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा आपको? If you have decided that you want something, क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा क्या कमी है आपके अंदर? आपके पास अच्छे से भगवान ने दिमाग दिया है जो सोचता है। मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा एसेट मेरा दिमाग है कि भाई it's sane, it can think good, right, bad, it can think, that's the biggest asset. तो आपका दिमाग चल रहा है, सब कुछ है, तो क्या क्यों नहीं होगा आपका एग्जाम? मेहनत आप कर सकते हैं। कई बार होते हैं, आप देखिए सबका अलग अलग प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर सम पीपल हु गिवन 18 आवर्स, हु आर स्टडीइंग 12 आवर्स, 16 आवर्स, उनका भी होता है। कई लोग हैं जो इतना नहीं पढ़ते हैं बट देयर concentration is amazing, their grasping power is very good. तो वो जितना पढ़ते हैं वो उनको याद, मतलब एकदम से उनको समझ आ जाता है। वो तब होगा अगर आप बहुत अटेंटिव हैं। जैसे पूरी लाइफ जिए आप, ऐसे मत करिए कि बिल्कुल हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी प्रेपरेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से टाइम दियो। ऑब्वियसली अब आपको बाकी चीज तो छोड़नी पड़ेगी, काफी चीज इतना ज्यादा ही पार्टी कर रहे हैं। मुझे पार्टी करना बहुत पसंद था, आज भी है, लेकिन आई नो व्हाट इज रिक्वायर्ड एट व्हाट टाइम, बिकॉज उस सबसे ज्यादा मुझे ये चाहिए था। मुझे था कि मुझे यही बनना है भैया, कुछ भी हो जाए। तो आप जब क्लास में, फॉर एग्जाम्पल आपकी 2-3 घंटे की क्लास है, जो भी आपको प्रोफेसर मेंटोर आप कुछ पढ़ा रहे हैं, उस टाइम मुझे होना चाहिए या तो मैं सबसे हार्ड वर्किंग हूँ या फिर मेरी कॉन्सेंट्रेशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए रूम में। एक भी चीज एक भी वर्ड कहा गया, लिखा गया, मेरे नोटिस से नहीं निकलना चाहिए। मुझे भी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिखाना है। और ऑल्सो क्वेश्चंस पूछना अच्छा होता है, बट आई फील कि जब कोई समझा रहा है, हम अपनी बात नहीं कर रही बिल्कुल, दिस इज डिस्कशन, सब कहीं भी पूछ सकते हैं, बट कोई जब कुछ समझा रहा है तो आप थोड़ा पेशेंस रख के सुनेंगे ना, तो आपको खुद ही उसके आंसर्स मिलते रहेंगे। पहले समझिए सारा, खुद पढ़िए, फिर जाके क्वेश्चंस बनाइए। कई लोग होते हैं उनको इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, पहले ही एक लाइन बोला टीचर ने, वो तभी क्वेश्चन आ गया। तो आप थोड़ा सुनिए, पहले समझिए, आपको खुद समझ आएगा। सब कुछ वो सब कवर करेंगे, अगर खुद भी पढ़ेंगे तो सब क्लियर होगा। केस लॉस पढ़ेंगे सब क्लियर होगा। पूछिए क्वेश्चन, बट उससे पहले थोड़ा खुद भी समझिए खुद, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछ के कोई आंसर कर देगा, दैट मे और माइट नॉट स्टिक विद यू, बट अगर आप थोड़ा सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा उस पर खुद देखेंगे, वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो थोड़ा ये करिए। और क्या कहूँ मैं इसके ऊपर, अब क्या कहना चाहिए मुझे? आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, Anushka. Before beginning with the question answer session, I must thank you first of all for being here. Or beta, what I am witnessing today is that I witness complete. I am proud of you first of all, because the way you have matured yourself, the way you have worked hard, and it always give an immense pleasure to me that I am witnessing one of my students. जिसको ना मैंने बस एक चीज हमेशा देखा, मैं अभी सबको भी मैं बोलूंगा ये चीज, अनुष्का में आई ऑलवेज सीन अ कॉन्फिडेंस। मेरा भी बिगनिंग था कैरियर का एमआईटी लॉ स्कूल दिल्ली में, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैंने इन लोगों को पढ़ाया था, और ये लोग तब से, लेकिन ये जब भी मेरे से अनुष्का से मेरी बात होती थी तो शी ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंस, सर ये कर लेंगे, क्या ये सब इंसानों ने करा है। आई ऑलवेज रिमेंबर अनुष्का दीज वर्ड्स, यू ऑलवेज हैव दिस कन्वर्सेशन व्हेन वी हैव अ कन्वर्सेशन, शी ऑलवेज वाज कॉन्फिडेंस। तो ये चीज आप हमेशा अपने पास रखो। और आज भी आप एक चीज देखो, शी हैज prepared, that is one thing which makes a way for your enlightenment। और आपको आगे बढ़ाने के लिए ना, जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे और आप मेहनत नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका सेशन है, अनुष्का ने हैज प्रिपेयर्ड इट, एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। इस तरह से मेहनत करके आप आगे जाओ, और होपफुली यू विल रीच टू द हाई कोर्ट, एंड मेरी तो दुआ ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचो। Now I begin a session for the question answers. आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी, आई एम सो सॉरी, प्लीज एक मैं और चीज कहना चाहूंगी कि जो मैं ये बात लास्ट में कही थी कि आपका मन करेगा व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज स्कूल, अरे उनको तो जॉब मिल गई है, होता है, मुझे भी होता था, बिकॉज आई वाज मैं जैसे सर कह रहे हैं इतनी ब्राइट थी, बट पढ़ाई भी ठीक कर लेती थी सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। तो देवर मेरे कॉलेज, मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में, उनको इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स मिल रही थी, इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे थे, दे वर गोइंग आउट फॉर एलएलएम, बाहर जा रहे हैं। तो आपका मन करता है कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो पीछे रह गए। बिल्कुल ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए मैं बता रही हूँ, जॉब नहीं है। आप जब जाएंगे ना कोर्ट रूम, मतलब इतना ज्यादा, मतलब मैं सोचती हूँ भगवान चुनते हैं
इन लोगों को, और आपको भी चुना हुआ है सबको। अगर आपने डिसाइड किया तो आप चुने हुए हैं, और ये कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। और इसको पॉजिटिवली लीजिए, जिसकी जॉब लगती है उसको बोले तुम पार्टी दो, तुम्हारी जॉब लगी है और पार्टी लो उनसे, ठीक है, पार्टी लो उनसे, तुम खाओ खाना, ठीक है, तुम्हारी भी लगेगी, ठीक है, सर्विस तो बहुत खुशी होगी। और देखिए होगा, ठीक है, बहुत मैं मानती हूँ बीच में आपका सैचुरेशन आ जाता है, डिप्रेशन होने लग जाता है कि यार मैं तो हो नहीं रहा। कई बार लोग होते हैं उनका नहीं होता है क्लियर, वो इतना ज्यादा, आई कैन फील इट बिकॉज आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स एंड आई कुड सी देम कि कितना ब्रेक डाउन हो जाता था उनका, ठीक है। तो फिर लेकिन आप चलते रहिए, मैं बताना सफर में धूप तो होगी, तो चलते रहिए बिल्कुल। और जब आपका सिलेक्शन होता है, पहली बात तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था जब मेरा रिजल्ट आया था, मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरा ही नाम है। मैंने रोल नंबर अपना 10 बार चेक किया होगा, एक एक नंबर डिजिट लगा लगा के मेरा ही रोल नंबर है। एंड उस वक्त जब आपके पेरेंट्स को पता लगता है ना, और जो उनके आंखों में थोड़े से आंसू आते हैं, आई एम टेलिंग यू दैट इज वर्थ एवरी स्लीपलेस नाइट, that is worth every party vacation you didn't go to, that is worth everything। कभी कभी क्या होता है लाइफ में, आप कुछ चीज अचीव करते हैं आपको फील ही नहीं होता। जैसे मेरा बचपन का सपना था, मेरा वो मुझे समझ ही नहीं आया कि अच्छा मतलब मुझे खुश होना चाहिए, हो गया क्या, मतलब हो ही गया, मुझे जो चाहिए था मिल गया। तो कभी कभी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते अपनी अकम्पलिशमेंट, पता ही नहीं लगता। बट आपके पेरेंट्स, मतलब माय पेरेंट्स सर, मतलब वो इतना खुश थे, मैं बता नहीं सकती, मैं उनको रोज देखती रहती थी कि यार इतने खुश, हर किसी को बता रहे हैं, हर कोई। और जिसने भी, जहाँ पे भी, जिसने भी आपको कभी कम आंका हो, बहुत लोग हैं, अच्छे भी लोग बहुत है दुनिया में, जैसे पता है बुरे अच्छे सब है, तो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं। अच्छा आपका इस बार भी नहीं हुआ सिलेक्शन, अच्छा 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 वहां हो गया, अच्छा गिराना चाहेंगे। कुछ नहीं होता, वो उनका अपना नेचर है, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक है। सांप है, सांप काटेगा, गाय नहीं बन जाएगा, ठीक है, ऐसा समझिए। अब जब सांप का नेचर, आप उसको कितना ही प्यार कर लेंगे तो काटेगा ना। अब जो अपना नेचर रखे, ठीक है यार, कुछ नहीं होता, वो जहां से आ रहे हैं उनका अपना कुछ होगा लाइफ में, मुझे चलते रहना है। और जिस दिन आपका हो जाएगा ना सिलेक्शन, अब वो तो बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा आपके दोस्त होंगे, अरे ये तो हमारी ही वो है, हमारी दोस्त है, ये तो हमारी ही भतीजी है, या बेटा है, पड़ोसी है, जो भी है, तो सब आपको पाना चाहेंगे। ये है, ये दस्तूर है लाइफ का। जब नहीं होता कुछ तो कोई आपके साथ नहीं आना चाहिए, कुछ बन जाता है वो सब आपके बन जाते हैं। तो ये एक्सेप्ट करके चलिए, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर पीपल, यू डूइंग इट फॉर यू। आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, अपने भाई बहन के लिए कर रहे हैं। और बहुत, जैसे अभी, जैसे कई बार अब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आपको बताती हूँ आगे कभी कभी लोग सोचते हैं अरे हाँ हो गया होगा, मतलब कितनी लकी है, या तो लकी, हाँ ये तो बहुत लकी है, इसका तो ऐसा हो गया है, या किसका भी हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा नहीं होता, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता पीछे। उसेन बोल्ट है, उन्होंने कहा था, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उनसे पूछा गया सर आप तो फास्टेस्ट हैं मैन, यू द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आप इतना भाग लेते हैं, यू सो ग्रेट, यू सो ग्रेट, क्या कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा जो परफॉर्मेंस है ऑन द ट्रैक नहीं है, माई परफॉर्मेंस इज बिहाइंड द सीन। जब मैं पीछे से इतनी मेहनत करता हूँ वो कोई नहीं देखता, सब कहते हैं ये बार बार फर्स्ट आता है। मेरी परफॉर्मेंस ऑन द ट्रैक ऑन दैट डे नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस पीछे की है, ठीक है। तो इसमें एक चीज मैंने आज ही सुबह पढ़ी थी, मैं आपके सामने बोलना चाहूंगी, ये सर से इंस्पायर्ड है, कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, बिल्कुल अर्जुन की जैसे नजर होती है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये मत सोचिए कहाँ जाना है, ये सोचिए बस डेस्टिनेशन है मेरी। फिर ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा भुट्टर नहीं देखा, ठीक है। तो सब जब जिस दिन बनेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ मेरी मेहनत आज सफल हो गई है, आज मैं जहाँ चाहती थी वहां पहुंच गई हूँ। उसमें जो लाइफ की अचीवमेंट है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और पूरे प्रोसेस को प्लीज एंजॉय करिए, बहुत मजा आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड। जिस दिन, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे, रो लीजिएगा, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है, रोना भी चाहिए कभी कभी, ठीक है। फिर लेकिन रो लिए, ठीक है, अब कल मेरा नया दिन है। यू हैव टू बी लाइक फीनिक्स, you will fall, ऐसा नहीं है कोई गिरेगा मैम नहीं, you मैम will सॉरी फॉर fall, but no, you मैम सॉरी फॉर इंटरप्ट। you कह have रहा to है know how to rise from the ashes, मैम। right? So Yes, now yes. the room is open for questions, and I wish अनुष्का आई थिंक क्वेश्चन है, हाँ जी, ये एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैम मैम ने बहुत अच्छा एक शेर बोला है, मैं लिखना चाहता हूँ मैम। लेकिन अच्छा ये मैं बताती अनुष्का, हूँ, ये बशीर बद्र साहब का है,
मेरी जो मदर है सर, वो एक्चुअली बहुत बड़ी अकम्प्लिश शायरा हैं। वो खुद भी बहुत अच्छी अच्छी शायरी करती हैं। अरे वाह, जी सर, तो ये लेकिन मेरी बहुत भूमिका बढ़िया, नहीं बहुत है। बढ़िया, दैट इज रिफ्लेक्टिंग नाउ। कैन यू रिपीट इट मैम? ये पूरी शायरी नहीं है, हाँ। इसका कुछ कुछ मैंने लिए हैं, कुछ कुछ मतले कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, तो फिर कुछ कुछ ही मेरे पार्ट लिए हैं। ये बशीर बद्र हैं, ठीक है, आप सर्च करेंगे आपको पूरी मिल जाएगी। दिस इज आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। लिख रहे हैं आप या रिकॉर्ड कर रहे हैं? Yeah, Irshad, if I know, you will be finding it on the website also. We are recording the entire lecture, and it is for the information of everyone who has been present here that we are recording the entire lecture, and it will be uploaded soon on the website within a day or two. And secondly, we will also upload on the YouTube. Yes, Irshad. So don't worry, you will be getting each and everything. And अगर आप चाहते हैं तो मैं रिलीज कर देती हूँ एक बार अब, लेकिन हाँ हाँ, बिल्कुल लिखना बिल्कुल। हो तो आप वहाँ वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा। ये है कि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। एंड इट्स रियली अ रियलिटी। पहले मैं बाद में नहीं, किसी क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन आंसर्स फॉर अ सेकंड। Yes, sir. हाँ सर मैं पहले मैम को जो है आदाब करता हूँ। मैं एडवोकेट मोहम्मद बुकेट डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से। जी, हाँ। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो प्रोसीजरल लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ है, मैं मेंस में अगर ड्राइव करता हूँ तो अगर हमें किस पर ज्यादा समय देना चाहिए, किस टॉपिक पे ज्यादा समय नहीं देना चाहिए? हमें कभी कभी मैंने लिखा और टॉपिक पे ज्यादा समय देते चला गया, वो टाइम हमारा कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उसमें ज्यादा समय दे दिया जाता है, उसमें केस लॉ और सारे मटेरियल सारे इंग्रेडिएंट्स डालने में, और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैं ऐसा क्या समराइज करूँ कि ताकि हमारे सारे टॉपिक भी आ जाए, कवर हो जाए, केस लॉ भी उसी में कवर हो जाए, और हमें एक दूसरी बात ये है कि सब्सटेंटिव लॉ में ज्यादा ध्यान देना या प्रोसीजरल लॉ में? कभी कभी क्वेश्चन हमारे जो है मार्क्स जो है सब्सटेंटिव लॉ में कम आते हैं, प्रोसीजरल लॉ में ज्यादा आ जाते हैं। तो ये सब्सटेंटिव लॉ की वजह से भी हम बाहर हो जाते हैं, तो इसका क्या है, इसका क्या स्ट्रेटेजिक? तो आपका क्वेश्चन भी मुझे समझ आया है। आप ये कह रहे हैं हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट हैं और कौन से नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर सम टॉपिक्स जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और जिस पे इतने ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देन सेकेंडली, हम सब्सटेंटिव इम्पोर्टेंट है आपके लिए या फिर प्रोसीजरल इम्पोर्टेंट है? और आप मुझे और क्या क्वेश्चन पूछा आपने? और प्रोसीजरल लॉ में मैं ज्यादा लिखते चला गया, प्रोसीजरल लॉ में या सीआरपीसी या कोई मतलब लिखने ज्यादा लिख लिया। अब उसके बाद में ये है कि हमने जो हमारा मार्क्स जो आए, हमने ये सोचा कि हमारा प्रोसीजरल लॉ में जो है काफी आएंगे मार्क्स, सब्सटेंटिव में जो है मार्क्स कम आ गए। तो ये दिक्कत होती है ना कि सब्सटेंटिव लॉ में मुझे मार्क्स लाना है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, अब ये जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता लगेंगे, तो इसलिए मैंने कहा आप बार बार अपने ना पास्ट ईयर पेपर्स देखिए, आपको एक पैटर्न नजर आएगा। ये होता है अलग, आप देखेंगे ना आपको पैटर्न समझ आएगा कि कौन से टॉपिक मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट बार बार पूछ रहे हैं या फिर इनका किस तरफ इंक्लिनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया सीआरपीसी का इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट जो आपका पूरा प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट पावर इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जनरल प्रोविजन जो आते हैं 300 से लेकर 390 320, ये सब यहाँ ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर देख के पता लगेगा पास्ट ईयर के लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो भी आपका इस पे ध्यान खुद बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। इसलिए आप पास्ट ईयर देखिए, और केस लॉ भी जब आप पढ़ेंगे आपके पास वो तो केस लॉ आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे या बुक्स, अगर आप कमेंट्रीज पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से, आपको केसेस वहीं से मिलेंगे। उनको आप इंडियन कानून पे पढ़ सकते हैं अगर आपके पास एससीसी का नहीं है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वहां पे भी पढ़ सकते हैं। अब सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल में क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज, आपको हर स्टेट का पैटर्न देखना है, एग्जाम के क्वेश्चन कितने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ठीक है। कि कई वजह से फॉर एग्जाम्पल झारखंड में क्या है, इन्होंने सारा ही एक पेपर में प्रोसीजर पूछ लिया, दूसरे में सब्सटैंटिव
पूछ लिया, ऐसे करके किया था। तो आप इसमें देखिए हर क्वेश्चन का कितना वेटेज है, प्रोसीजरल जो मेरा पेपर है उस पे कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं, सब्सटैंटिव में कितने अलॉट किए हुए हैं। प्रोसीजर का क्या है, इट इज अ नेवर एंडिंग सब्जेक्ट। प्रोसीजर कितना आप पीपीसी करने बैठे, आप सोचे मैं हर चीज कर लूंगा, कर लेंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो आप मार्क्स के हिसाब से देखिए कि सब्सटैंटिव के कितने मार्क्स, और ऐसा कुछ नहीं है प्रोसीजर सब्सटैंटिव में ऐसा किसी कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं कहा जा सकता, कोई सब्जेक्ट लेस स्कोरिंग नहीं कहा जा सकता। सब्सटैंटिव मुझे लगता है उसमें आपको मटेरियल आपको ज्यादा मिल जाएगा। और अगेन आप क्वेश्चन पेपर देखिए, पीटी के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं आप, उनसे क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए कि क्या हो रहा है। आप गूगल पे जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब भी, और एक बुक आती है, हाँ मेरे पास एक बुक थी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की, मोटी सी बुक है। अब वो मुझे इसका पब्लिशर का नाम अभी याद नहीं आ रहा, कोई भी मार्केट में सिंगल्स आपके जैन साहब की जो बुक्स आती है सिंगल्स में आती है। नहीं वो एक है नहीं, सिंगल्स का पब्लिकेशन है बेटा अनुष्का, वो आई थिंक सिंगल्स का ही है, मेरे पास रखी बहुत थी गलत मोटी रहता है सर। हाँ वो मोटा वाला, हाँ यूनिवर्सल्स का। आई थिंक तो उसमें क्या होता है, इतनी बड़ी बुक होगी ना आपके पास, सिर्फ और सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस है अलग अलग स्टेट्स के। तो उसमें मैंने क्या किया था, जब मैंने पढ़ाई तो सारी कर ली, तो मैंने तब उसके बाद भी मैंने फिर स्मार्ट वर्क भी किया था। कैसे, अब मैंने सारे स्टेट के निकाले, एक जो मेरा स्टेट है उस टाइम में झारखंड लिख रही थी, तो मैंने झारखंड के ऊपर फोकस किया, उसके पास किया। बट ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट मैंने सारे ही बुक में मार्क कर लिया। जो सीपीसी पढ़ रही हूँ मैं, सीपीसी में कौन कौन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, उसका मैंने एक चार्ट बना लिया था कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें मुझे पता लग गया ये बिल्कुल सिंपल है, 10 बार रिपीट हुआ है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ गया, कोई 2 बार रिपीट हो गया वो कम इंपॉर्टेंट में आ गया। ऐसे करते करते आपको आइडिया हो जाएगा खुद ब खुद कि अच्छा यहाँ से पूछना चाह रहे हो। मैंने पढ़ाई, मैंने सारा देखो सिलेबस मैंने कंप्लीट किया, बिकॉज एक मेरे साथ ये अच्छा पॉइंट था कि मेरा जो सिलेक्शन है ड्यूरिंग मेरा प्रेपरेशन ही हो गया था। तो मैं प्रेपरेशन में थी, तो मेरा बहुत सब कुछ रिसेंट था जब दिमाग में, कि मुझे सब कुछ याद था। तो उसी में आपका जो प्रेपरेशन तो है ही अच्छा खासा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पता लगेंगे ना, तो आप अच्छे से टाइम एलोकेट कर पाएंगे। और ये सारा जो प्रोसेस है आपका पीटी के रिजल्ट के बाद होगा, मेन से पहले। अभी से तो आपको सारा ही पढ़ना है, बट अगेन क्वेश्चन पेपर पहले उठा लीजिए। मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ किसी को, क्वेश्चन पेपर पहले उठाइए, थोड़ा क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। और बाकी तो करना ही है, पूरा पढ़ना तो है ही। बैरैक समझे, कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कमेंट्री की जरूरत नहीं है, बैरैक काफी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेट्स हैं जिनके लोकल लॉज आते हैं, अब लोकल लॉज के लिए आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है। लोकल लॉज के लिए बैरैक बेस्ट है। जो रेंट लॉज हो गए आपके, यूपी में तो बहुत यूपी जेडएल आ रहे हैं, पूरा आता है यूपी में, काफी आते हैं। तो उसके अंदर बैरैक इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ एप्लीकेशन लायक है भी नहीं, बहुत सिंपल सिंपल आता है। तो बैरैक के अलावा कुछ और रेफर करने की जरूरत है नहीं। एनीबडी एल्स क्वेश्चन? मैं ओनली 2 क्वेश्चंस लूंगा क्योंकि Yes, ऑलरेडी वी आर रनिंग। यस सर। yes, हाँ, sir. एक Yes, second. sir. हेलो मैम। पहले मैं पूछूं? जीशान हाँ जीशान आप पूछे। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मैम मैं थोड़ा जानना चाहूँ आपकी स्कूलिंग वगैरह एलएलएम वगैरह कहाँ से किया है, और दूसरा मैम मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने जुडिशियल कोचिंग की है, और की है तो कहाँ से की है? जी जी बस 2 क्वेश्चन। जी। तो मेरी जो एलएलबी है वो सर यहाँ पहले टीचर थे, एमिटी लॉ स्कूल आईपी यूनिवर्सिटी से हुई है। 2018 में मैंने क्लियर किया था अपना, बीएलएलबी कंप्लीट हुआ था। एलएलएम मैंने नहीं किया है, और मैंने कोचिंग ली है। कोचिंग दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है एक राहुल आईएएस, मैंने वहां से कोचिंग ली है। और कोचिंग खत्म हो रही थी, मेरा एविडेंस नहीं हो पाया था वहां पे, उससे पहले एग्जाम आ गया था। तो कोचिंग मैंने की है। ये आई थिंक आई हैव आंसर्ड। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. वन मोर। हाँ मैम जैसे कि हमारा ये सिलेबस काफी वास्ट होता है, तो हाउ टू बी इन राइट डायरेक्शन, मतलब सब कुछ पढ़ना रहता है, तो एक डायरेक्शन होता है जहाँ जिससे कि हम अपना एग्जाम क्रैक कर सकें मेंस को। तो हाँ सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बहुत वास्ट है, अब हम कहाँ से क्या पढ़ें। तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने शुरू में थोड़ा सा मेंशन किया था कि सोर्सेज, अपनी एक ही सोर्स रखिए। जैसे एक सब्जेक्ट की अगर आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं बाय चांस, तो कोई भी बुक है, बहुत बहुत मार्केट में बुक्स है, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट की बुक है। जैसे केडी गौर है क्रिमिनल के लिए, केलकर है, रतन लाल धीरज लाल है, बहुत सारी हैं। जैसे सिविल में लगे टकवानी है, ऐसे बुक्स हैं। तो एक सोर्स रखिएगा, और अगेन ये वहीं से पता लगेगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, वहां से आपको पता लगता रहेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, वहां कहाँ देखना है। एक से ज्यादा सोर्सेज रखने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर एक ही रखिए।
जीके जीएस के लिए एक ही रखिए। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा जीके जीएस का लैंग्वेजेस तो कहीं से भी कर सकते हैं, उसका कोई सोर्स नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सोर्सेज। एक सोर्स रखिएगा, ज्यादा मत देखिएगा। पेपर देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो बताएंगे, बाकी आपका जो भी जहाँ पे भी आपके जो मेंटोर हैं वो आपको इस चीज में और अच्छे से गाइड कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव सीन पेपर्स, दे नो कहाँ से क्या आ रहा होता है। ठीक है, तो आप एक ही सोर्स रखिएगा, उसी से आप गाइड होंगे। एक बुक करते रहिए बार बार, दैट इज मोर देन। अभी आप एक ही जैन मत लीजिएगा कि आप एक ही जैन, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी के पेपर वहां से क्लियर हो सकते हैं, यहाँ के नहीं चलेंगे। बेटा मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। पहले में मेरे को आए यस एक क्वेश्चन और लेता हूँ बेटा, बस नॉट टेकिंग टू मच टाइम। एक कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी। यस यस सर, तौसीफ। हाँ तौसीफ पूछे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये पर्टिकुलर स्टेट में ये मतलब पैटर्न फॉलो कर रहे हैं मेंस में, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैम मेरा पूछना ये है, बेटर स्ट्रेटजी क्या होगी ये कि हमें मतलब वो टॉपिक्स अपने नोट से पढ़ना चाहिए या फिर हमें उनके एक मॉडल्स आंसर तैयार कर लेना चाहिए फिर उनको याद करना चाहिए, मतलब बेटर स्ट्रेटजी क्या होगी इसके लिए? मतलब मुझे थोड़ा सा आपने मतलब स्टेट भी एक पूछा, पैटर्न जैसे जैसे कहीं कहीं मैम अभी स्टेट के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं आप, प्रेपरेशन क्या कह रहे हैं, सुनाई थोड़ा कम दे रहा है। मैम, जैसे मैम ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि जैसे स्पेसिफिकली मैं बात करूँ एमपी के लिए, तो एमपी के लिए स्पेसिफिकली मैंने फाइंड आउट कर लिया कि एमपी मेंस में इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के लिए। जी। तो मतलब बेटर स्ट्रेटजी क्या होगी कि मैं उन टॉपिक्स को अपने नोट से तैयार करूं या फिर मैं उनके जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी एक मॉडल्स आंसर लिख लूं, एक मतलब एक पेज में 2 पेज में, फिर उनको अच्छे से याद करूं, मतलब बेटर स्ट्रेटजी क्या होगी? तो जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको पता लगता है, आपने देखा कोई, पहले तो अभी जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। वैसे अगर आपका मेंस अभी है, कई लोग जैसे एमपी का मेंस लिखने वाले हैं, तो अब तक तो आपको पता ही होगा कि क्या अंदर का कंटेंट क्या है। अब आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, और कोई मॉडल आंसर आप याद करके कुछ होगा नहीं, बिकॉज वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, कुछ भी आ सकता है। आपको उसका फॉर्मेट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए कि मेरा फॉर्मेट क्या है। कई बार क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि आप इतना नहीं आपको टाइम मिलेगा कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं, तो आपको कोई बार बार लिखिए। देयर इज नो स्पेसिफिक क्या कहते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग एन आंसर, आप फॉर्मेट पे स्टिक करिए। इंट्रोडक्शन, उसका क्या क्यों है वो, उसका मिस्टर, जैसे मिस्टर क्यों होता है, क्या वो बोलना चाह रहा है, कंटेंट, जजमेंट कोई याद आ रहा है, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, और फिर प्रैक्टिकल इशू वाइज करना है आपको। तो कीप राइटिंग आंसर, देयर इज नो स्पेसिफिक कि आप मॉडल आंसर लिख के रख लेंगे और ऐसे हो जाएगा। और कई बार बुक्स ऐसी भी हैं जहाँ पे मेंस आंसर वाली बुक्स भी आती है। जैसे हमारे पास तो इतना क्या था कि बचपन से हमने आंसर राइटिंग ऐसी किया तो थोड़ा बेटर था, और वरना आपकी आंसर राइटिंग की बुक्स आती है, उसमें आप आंसर देख सकते हैं, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप बस समझिए कि क्या क्वेश्चन था, उसको कैसे डील किया गया है, और उसको आपको शॉर्ट में लिखना है। प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे कुछ लर्न करके कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच अनुष्का, आपने इतना आसान बना दिया इन बच्चों के लिए। और मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि द वे शी पहले अटेम्प्ट में अनुष्का ने निकाला, तो उसके पीछे उसका डेडिकेशन, हार्डवर्क और एक रेगुलर स्टडी भी है, एक प्लान भी है सब उसका। और आप सबको यही भी सीखना है कि हम लगातार पढ़ते रहें। और दूसरी बात, आज मैं उसको दोबारा पॉइंट आउट करूंगा, शी हैज कम विद द प्रिपरेशन टुडे। आप जिंदगी में कहीं पे भी जाए ना, बिना अगर तैयारी के आप जा रहे हैं ना, तो आप कभी भी उस जंग को नहीं जीत सकते। एंड अनुष्का, ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर, एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, बेटा थैंक यू सो मच। एंड वी विल डेफिनेटली टेक योर सर्विसेज वेन एवर वी नीडेड। और उसके लिए मैं एक प्रॉमिस भी लेना चाहूंगा, क्योंकि वी आर इन अ ग्रेजुअली स्टेट नाउ, और हम लोग के बहुत सारे बच्चे क्रॉस करते हैं, और हम लोग को आप लोग का इंस्पिरेशन है। आप लोग जब आते हो, क्वालिफाई करते हो, और एक टीचर्स मेरे लिए भगवान जैसे हैं। आप हुक्म करिए सर, प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, नहीं मेरा हक है। मैं कभी भी मैं क्योंकि बिकॉज वी नीड यू, और हम लोग को अच्छे लोग चाहिए ताकि हम लोग अपने बच्चों को और पॉलिश कर सकें। जहां जहां उनका थोड़ा सा कहीं कमी हो रहा है कैलिबर में, तो वो उनको इम्प्रूव करा सकें। अपनी कोशिश हम लोग बरकरार रखे हुए हैं, और उस कोशिश में आप लोग भी शामिल हो। और क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ इंटरनल वर्ल्ड, बिकॉज आप लोग इतना कुछ जानते हो आज की तारीख में। वंस यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम, मैं फिर कहता हूँ, मैंने कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा। आई एम
नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम, बट मैं 3 इंटरव्यू से फेल हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बट उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम भी निकले। कोई इस तरह आप नहीं, बिल्कुल फेलियर नहीं कह सकते। मैं कौन पढ़ाता? नहीं बेटा, मैं इसलिए भी बोलता हूँ, मैं बच्चों को इसलिए भी बोलता हूँ ये सब चीजें कि दे मस्ट गेट मोटिवेटेड। एक अगर आप इस लाइन में नहीं बन पाते तो आपके बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं। आई एम एबल टू कंप्लीट बहुत सारे एग्जाम। मेहनत करते रहिए सब लोग ये। और बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल 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 डेस्टिनी के आगे कोई नहीं जीत सकता। अपना बेस्ट करिए, और अगर कर भी लेते हैं, आपने पढ़ाई की है ना, उसके बाद इतने अमेजिंग एडवोकेट बन सकते हैं, इतने बढ़िया आप टीचर बन सकते हैं। अब सर मैं जज बनी तो मैं एक बनी, ठीक है, और एक जो जज नहीं बने वो टीचर बन के हजारों को बना रहा है। कौन क्या किसको कह सकते हैं बड़ा छोटा? किसी को नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच बेटा। और मैं एक जरूर मैं बोलूंगा, बिकॉज आई वांट टू फिनिश दिस प्रोग्राम। और मैं ये बोलूंगा, कबीर दास जी का एक दोहा है, और आज मैंने क्लास में भी बोला था एमआईटी में, आई रिमेम्बर दैट। और शायद मैं अनुष्का आज उसने पूरा कर दिया, और मेरा भी एक सपना पूरा हुआ कि मेरे बच्चों के थ्रू हम लोग उस जगह तक पहुंचते हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन खुशी है, कबीर दास जी ने जो कहा था ना बेटा, जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो, कुछ ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। वी नीड गुड पीपल्स। जब गुड लोग बाग नहीं होते तो उनकी जरूरत होती है, और स्टिल द सोसाइटी इज फुल ऑफ गुड पीपल्स। और मुझे ये उम्मीद है आने वाले टाइम में वी विल रीड द जजमेंट्स ऑफ अनुष्का। ये तय बात है, क्योंकि वो मेरे को दिख रहा है। और ये बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुश है, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा। और खूब तरक्की करो, खूब नाम रोशन करो अपने माँ बाप का, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है, उनकी बहुत बड़ी दुआएं होती हैं। हम लोग तो अपना जो कैलिबर देते ही देते हैं, लेकिन हम बिना माँ बाप के हम कुछ नहीं है, उनकी दुआओं के बिना हम कुछ नहीं। आप सबके सबको मेरी बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतनी पायस प्रोफेशन को चुना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जब जुडिशियल ऑफिसर बनिएगा या बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं उसको प्लीज, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें यहाँ बहुत पावर मिलेगी, अब देखिए सबका अपना होता है, मैंने पावर के लिए नहीं सोचा, पावर नहीं है यहाँ। आप आएंगे ना, पावर से ज्यादा बहुत ज्यादा कम्युनिटी वर्क है, बहुत सर्विस है। आप तो बेल भी एक इंसान की रिजेक्ट या अलाउ करते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा जस्टिस कर सकते हैं आप। तो बहुत ज्यादा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। गलत काम में पढ़ने की सोच रहे हैं, यहाँ बन के पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज मत करिए, ऐसा नाम मत खराब करिएगा। अच्छे इंटेंशन से जाइएगा, अच्छा करने का सोचिएगा, इतना भगवान आपको हमेशा देंगे, और हमेशा ब्लेसिंग लेके चलिए। मैं तो सर बता रही हूँ, मेरा 60% ब्लेसिंग से ही हुआ है, ठीक है। बहुत ब्लेसिंग नहीं, अच्छा करिए, बाकी जो कोई करे, अपना आपको हमें सच्चे रास्ते पे, सही रास्ते पे रखना है। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सही में इसका फल मिलेगा, जैसा आप करेंगे वैसा जरूर मिलेगा। तो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, सब बहुत अच्छा करिए। बाकी जब भी आई ऑलवेज बिल्कुल बिल्कुल, मैं थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।